भारत निर्वाचन आयोग की यह उड़ीसा यात्रा जो आप सब जानते हैं आगामी लोकसभा चुनाव और जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं उनकी समीक्षा के क्रम में की गई। ये भी आपको अवगत है कि 2024 में 4 राज्यों के और चुनाव होने हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम भी शामिल है। तो ये जो प्रिपरेशन की रिव्यू है ये स्टेट्स और पार्लियामेंट के इलेक्शन 2024 दोनों के लिए। So first of all, I would like to, on the behalf of Election Commission and through your medium, like to say that we are fully prepared to conduct 2024 parliamentary elections and also the state assembly elections. Every preparation is almost complete. And in that sense, before I start my presentation, I would like to request through you from the commission side that all the voters of Odisha should come and participate in this festival of democracy. So सभी से बहुत ही विनम्र अनुरोध है सभी उड़ीसा के वोटर्स से कि आपके लिए बहुत तैयारियां की हैं हम लोगों ने और करने वाले हैं, तो जरूर जरूर वोट डालने के लिए आएं। युवा वोटर्स हों या महिला वोटर्स हैं या हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में इनएक्सेसिबल एरियाज की वोटर्स हैं। तो ये चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है, इसमें जरूर जरूर पार्टिसिपेट करें। सो फ्रेंड्स, द कमीशन began its visit yesterday and first of all met with the political parties. That is a tradition, we first hear all the political parties so that whatever they have to tell us, whatever they have to have issues, they tell us. Then we met all the district collectors and the SPs and the IGs, commissioners. Thereafter, we met today morning all the enforcement agencies of the federal department and the state departments, and thereafter the chief secretary, DG, and other senior officers of the states. So I brief you about what happened in those meetings, what were the issues, and what is our reaction. So I'll give you full brief on this so that you are fully aware of what is happening. In the commission, we follow a very strict policy of 3 main ideologies. One, inform, inform, inform. So we disclose whatever we do to everybody, either through our websites or through press conferences. Secondly, involve. We involve all political parties, media and other stakeholders at every stage of whatever we do. So that आपको बता भी दें हम क्या कर रहे हैं, आपके प्रश्न भी ले और उसके बाद में उसका उत्तर भी दें. So the participation and then disclosure. This is what we always manage. So in that kram, I will first tell you what the political parties told us. What is their expectation from us? हमने जो मीटिंग्स की उसमें नेशनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी और बाकी नेशनल रीजनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, बीजेडी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने आए। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ उनका क्या कहना था, बिकॉज उनको जो कहना है वो हम सुने और उसका जवाब दें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द मेन इश्यूज इंटर एलिया वर that first demand was that we ensure the neutrality of the government machinery. Many parties stated that the administration is perceived to be not neutral, so they favor a party in power. Therefore, the level playing field should be established and administration should become totally aligned to this principle. There was also an apprehension that during elections, the facilities and entitlements which are given to the political parties, जैसे ग्राउंड उनको देना है, व्हीकल्स की परमिशन देना है, लाउड स्पीकर की परमिशन देना है, तो वो उनको नहीं मिलती है, दूसरों को जल्दी मिल जाती है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, दैट व्हाटएवर एंटाइटलमेंट द पॉलिटिकल पार्टीज आस्क फॉर, दे शुड बी गिवन टू एवरीबडी इक्वली। देन एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट इलेक्शन में वाज नॉट ऑल दैट alive to checking the violence. There was violence which happened in last elections in certain areas. तो उनको पूरी तरीके से एनर्जाइज किया जाए कि यहाँ वायलेंस ना हो, ऐसा भी लोगों का कहना था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, नॉट ऑल, कि गवर्नमेंट व्हीकल्स और को या एम्बुलेंसेस को यूज किया जाता है कुछ इरेगुलर सामान ले जाने में, जिसमें कैश भी शामिल है, ऐसा उनका परसेप्शन था, उनका कहना था। सिमिलरली ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, उसका इस्तेमाल
पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए किया जा रहा है या किया जा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। दूसरी उनकी रिक्वेस्ट थी कि ईवीएम्स को जो है वो सबके सामने में एक दो जगह में सील नहीं किया गया था लास्ट टाइम, उसको इंश्योर किया जाए। जितने वेयर हाउसेज हैं उनमें सब में सिक्योरिटी पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाए, जिसमें खासतौर से सीएपीएफ की यानी सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी भी हो स्टेट के साथ साथ। देन उनका यह भी कहना था जब इलेक्शन खत्म हो तो कितने वोट पड़े उसका एग्जैक्ट खाका, उसका एग्जैक्ट हिसाब किताब फॉर्म 17C के अंतर्गत कैंडिडेट्स को के एजेंट्स को दिया जाना चाहिए, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी उसमें चेंज का प्रॉब्लम ना हो। दो और स्पेसिफिक थी उनकी डिमांड्स कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर्स चलाते हैं या पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, तो पेड न्यूज़ को चेक किया जाए। ऐसा ना हो कि न्यूज़ के फॉर्म में पार्टी प्रमोशन या अपना प्रमोशन किया जाए, उसको आप पेड न्यूज़ के रूप में माने। ये भी कहना था उनका कि जो कुछ एक पार्टी का जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं उसमें सिंबल यूज हो रहा है पार्टी का, दैट इज ऑल्सो against the norm on the symbol orders, and also misuse of public funds. These were the demands. So as you know, the feedback from the political parties are very, very important. They are important stakeholders in the entire election process. The first being the voter, most important being the voter. They are the second interface between the voter and the commission. So we have, I will tell you each point during the presentation. लेकिन ये निश्चित है कि जो वो पॉइंट उठाए उनका समाधान होना चाहिए, नॉट ओनली एक्चुअली बट परसेप्शनली ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इनका जवाब दूंगा सबका एक एक करके व्हेन द सब्जेक्ट कम्स और इन द एंड। सो एज रिगार्ड्स द असेंबली इलेक्शंस एंड द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा, कार्यकाल जो है उड़ीसा विधानसभा का 24 जून 2024 को खत्म हो रहा है और पार्लियामेंट्री का जो है 16 जून को खत्म हो रहा है, यानी 16 जून चुनाव संपन्न होने। उड़ीसा में 1 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जैसे आपको मालूम है, जिसमें से एसटी 33 हैं और ये एसटी का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 21 में से 13 जनरल हैं, एससी की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और एसटी की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द एंटायर कंट्री। देन second highest actually if you look at it in the entire country after Jharkhand parliamentary constituency is reserved for STs. If I tell you about what is your electoral roll like, मतलब कौन लोग वोट करेंगे, तो पूरी स्टेट में 3.32 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से मेल 1.68 हैं और फीमेल वोटर्स 1.64 हैं। इस बार प्रयास रहा है कमीशन का बहुत अधिक कि इसको काफी इंक्लूसिव बना जाए, प्योर बनाया जाए। तो हमारे पास 3380 थर्ड जेंडर भी हैं। वी हैव मेड स्पेशल एफर्ट्स टू एनरोल देम बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड वेरी सीनियर सिटीजन्स आर 6.8 lakhs। और जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको भी खासतौर से इलेक्टरल रोल्स में ईयर मार्किंग की गई सो दैट वी कैन गिव देम एक्स्ट्रा फैसिलिटी, द फैसिलिटी बीइंग द वोटिंग फ्रॉम द हाउस और स्पेशल फैसिलिटीज एट द पोलिंग स्टेशन। देन आपको जान के खुशी होगी कि इसमें से ऐसे भी हमारे पास 9060 मतदाता हैं जो 100 साल से अधिक के, मोर देन 100 years, centenarians. So this also tells about the good environment and good health profile of the state, that we are privileged to have so many senior citizens with us. Friends, if you compare it with the last 2019 elections, the figures, so this all we will be putting on the website. Immediately after this it will be available, so if you want to use, you can use this. Total electors have increased, male electors have increased, female electors have increased as it is shown in the chart. 18 से 19 साल के वर्ष के जो electors हैं उनकी संख्या बढ़ के अब करीब 7.5 lakhs हो गई है, 7.5, which is a very very healthy progress. Third genders have also increased. और अगर हम लोग अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की वृद्धि को देखें जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, तो वो भी करीब नेक्स्ट में 2002 मतलब दोगुने से ज्यादा हो चुके हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज।
This is also a very, very healthy trend. अगर टोटल इलेक्ट्रल रोल्स में परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो 4.4% की वृद्धि हुई है 2019 के बाद से। महिला मतदाताओं की भी संख्या बढ़ी है और नाउ देयर इज ए स्पेशल फोकस ऑन द वुमेन in the elections. This slide will reflect you as to how the women have really increased. जो इलेक्ट्रल रेशियो है आज की डेट में विमेन जेंडर इलेक्ट्रल रेशियो वो बढ़ के 972 हो गया है. दिस इज 36 पॉइंट्स मोर देन दी 2019 इलेक्शंस. यानी पुराने समय से 2019 से अब तक महिलाओं की संख्या हमारे इलेक्ट्रल रोल्स में अधिक हो चुकी है और 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां ये रेशियो 1000 से भी ज्यादा है, यानी वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है. सिमिलरली जो मैंने आपको अभी 18 से 19 की फिगर बताई थी यंग वोटर्स की, उसमें भी वुमेन वोटर्स की संख्या 3.4 lakhs की है. दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ द यंग गर्ल्स कमिंग टू आवर इलेक्टोरल रोल. And we will request through you again to all the young voters to come and vote, all women and all male electors. Then friends, अगर यूथ की बात करें उसी क्रम में तो एक कार्यक्रम चलाया गया था यहाँ मुनबी मीता, आई एम ऑल्सो मीता, मीन्स if I am also participating in the elections. There were special AEROs who were appointed during the summary revision to attract and to have an outreach towards the young voters. तो जैसे स्कूल में कैंपसेस में जाना, उनसे बात करना, दिस हैज बीन ट्राइड एवरीवेयर इन द कंट्री एंड उसके रिजल्ट्स यही हैं कि 4.7 लाख के करीब फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 से 19 वर्ष के हमारे इसमें ऐड हुए, विच इज वी आर वेरी happy to welcome them to the electoral roll and request them to participate in the elections and have an experience of the democratic festival. So much so, एक ये भी सुविधा दी गई है कि जो 1 जनवरी 24 को 18 साल के नहीं थे लेकिन ड्यूरिंग 2024 18 साल के होने वाले हैं, यानी कोई 1 जनवरी और 31 अप्रैल के बीच में 30 अप्रैल के बीच में अगर कोई 18 साल का होगा तो एडवांस एप्लीकेशन दे दें ताकि उसको भी वोटिंग का मौका मिल जाए, मतलब बार बार ना जाना पड़े, हर बार तो एसएसआर होता नहीं है. सो देयर आर 1.09 लाख एडवांस एप्लीकेशंस which have been received and with respect to the 1st April, 1st October and the 1st July. Gender ratio in 18-19 age group has also increased. More and more girls have enrolled themselves. Friends, अगर मैं अब assured minimum facilities की बात करूं, so there are सभी मतदान केंद्रों पर जितने भी मतदान केंद्र हैं या सभी मतदान केंद्रों पर अब एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी, यानी आपको पीने का पानी, रैंप, बिजली, टॉयलेट. तो दिस इज टू मेक द वोटिंग एक्सपीरियंस वेरी वेरी इजी फॉर द वोटर्स, क्योंकि ये भी हमें मालूम है कि गर्मी का समय होता है, तो ये सारी व्यवस्था यहाँ करने की तैयारी की गई है. अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में आपको मैं बताऊं, इससे पहली वाली स्लाइड, सो टोटल नंबर है 37,809, एवरेज वोटर्स हैं 879. अर्बन रूरल का आपको यहाँ मैंने बताया है कि 4,340 इसमें से अर्बन है और 33,469 आर दी रूरल थिंग्स. इसमें मोर देन 50% पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी. सो आउट ऑफ टोटल 37,809 पोलिंग स्टेशंस, there would be webcasting arrangements on 22,685 polling stations. इसमें डायरेक्ट फीड हमारे कंट्रोल रूम में देखते रहेंगे लोग, ताकि अगर कोई भी वहाँ गड़बड़ी की शिकायत होती है या गड़बड़ी देखी जाती है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन हो सके. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूथ और वीमेन, इनको आगे रखना, फोकस में रखना थ्रू इलेक्शंस, एक इनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए देयर वुड बी 300 पोलिंग स्टेशंस व्हिच विल बी मैन्ड बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. जो हमारे स्टाफ हैं वो इसको मैनेज करेंगे, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं. सिमिलरली देयर वुड बी 700 बूथ्स व्हिच विल बी मैनेज्ड बाय ओनली यंग एम्प्लॉइज, जो अभी रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं.
तो जैसे बच्चे भी जाए, जैसे यंग वोटर्स जाएं, उनको लगे हमारा ही जैसा कोई व्यक्ति उनका वोट ले रहा है, जस्ट टू गेट ए sense of involvement and empower them. And similarly, there would be 4,000 polling stations which will be managed by only women, all women staff. तो उससे भी women को भी आने में भी सुविधा है और एक empowerment भी उससे उनका निश्चित होता है. If we look at the care for PWD voters, जो PWD voters हैं उनको फॉर्म 12D भर के घर से वोटिंग की सुविधा है. यानी वो अगर नहीं चाहते किसी वजह से, उनको दिक्कत है पोलिंग स्टेशन तक जाने की, तो दे कैन फिल अप ए फॉर्म एंड देयर इज ए फैसिलिटी टू देम एंड टू वेरी सीनियर सिटीजन्स टू वोट फ्रॉम देयर कंफर्ट ऑफ देयर होम. मोस्टली पीपल वांट टू कम टू द पोलिंग स्टेशन. दिस इज व्हाट इज आवर एक्सपीरियंस. एंड if they come to the polling stations, there would be large number of facilitations which we will ensure at each booth. What are those? रैंप हो जिससे कि उनकी व्हील चेयर आराम से चढ़ जाए, एक व्हील चेयर की व्यवस्था हो, एक वॉलंटियर की व्यवस्था हो, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था हो, और एक रेस्पेक्टफुल उनके साथ में बिहेवियर हो. जैसे अभी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को सम्मान के साथ बोला जाए, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए. दिस इज व्हाट वी आर एस्टेब्लिशिंग, दैट एंटायर सोसाइटी स्टार्ट्स काइंड ऑफ गिविंग देम देयर ड्यू एंड स्टार्ट रेस्पेक्टिंग देम. इफ पोलिंग स्टेशन पे कर सकते हैं आप लोग देखभाल, तो एयरपोर्ट पर भी कर सकते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से समाज में उनके प्रति सम्मान बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े और उनके प्रति कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल, डिमीनिंग शब्दों का इस्तेमाल ना हो. So this was for facilitation of our PWD and elder voters. We will reach to the last mile. मतलब पोलिंग स्टेशंस को इस जगह तक पहुंचाएंगे जहां लोगों को सुविधा मिले. जैसे लास्ट माइल के जो पोलिंग स्टेशंस हैं, फॉरेस्ट एरिया में जो भी नक्सल प्रभावित एरिया हैं या जो भी इनएक्सेसिबल एरिया हैं, सब में हम अंदर तक जाएंगे. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आपको दिखाए जा रहे हैं कि इन जगहों में भी हम जाके, जहां कोई रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बन रही हैं, या जैसे बोलंगीर ब्लॉक का ही एक एग्जाम्पल है, तो वहां जाके हम पोलिंग स्टेशंस को शिफ्ट करेंगे ताकि आपके द्वार तक पहुंचे और आप वोट दें. दिस इज ऑल टू ensure that more and more participation happens in the voting. People participate closer to their house and in the environment which is conducive and which is helpful. जहाँ जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम थी वहाँ के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जो कि हमारी स्टेट का जो वोटर टर्नआउट है यू नो इज 73.29%. लेकिन 23 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जिनका नेशनल जो वोटर टर्नआउट है 67%, उससे कम थी. इसी प्रकार से 59 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जो 67 और 73 के बीच में, यानी वो स्टेट एवरेज से नीचे हैं. तो और 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें कि टर्नआउट, स्टेट के टर्नआउट 73% से नीचे था. तो इन सब में एक विशेष प्रयास है कि इनमें हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसको बोलते हैं टिप, यानी टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान. We are going to the last mile, identifying all district magistrates have been asked to go to the last mile, make more and more registration and ensure that after adding them into roll, they also bring them to poll day. So roll to poll, that's what is the strategy. Coming next to the vigilance during the elections. Now this was the first part. Now we are coming to the process part as to how would we ensure free and how would we ensure the inducement free elections, violence free elections. तो पहली तो नागरिकों को एक सुविधा और एक एम्पावरमेंट हमने दिया है, एनेबलमेंट हमने दिया है. एक ऐप है हमारा सी विजिल, यानी सिटीजन्स वी विजिलेंट. आप अगर जागरूक हैं तो आप हमें बताइए कहीं अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटा जा रहा है, कहीं कोई लीकर बांटा जा रहा है, कहीं कोई वोटिंग के समय में परेशानी है, तो आप हमें तुरंत से बताइए. कैसे बताएंगे? तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप हमें या तो टेक्स्ट लिख दीजिए, या एक पिक्चर खींच के लिख दीजिए, या किसी की बात आपने रिकॉर्ड की है वो करके भेज दीजिए. व्हाट विल हैपन, द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू सेंड दैट मैसेज वो ऑटोमेटिक लेके हमारे सिस्टम में आ जाएगा. और जो भी हमारी एसएसटी की टीम या पुलिस टीम बगल में होगी मजिस्ट्रेट की, वो विद इन 100 मिनट्स आपके पास पहुंचेगी, उस जगह पर पहुंचेगी जहां से वो मैसेज दिया गया है. यानी
और उसका नाम भी नहीं पता लगना। अगर आप चाहते हैं किसी का नाम ना पता लगे, एनोनिमस देना चाहते हैं कोई कंप्लेंट, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आपके माध्यम से हम सभी नागरिकों को, वोटर्स को ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन को फ्री, फेयर, इंड्यूसमेंट फ्री कराने के लिए, कम शोर शराबे के साथ कराने के लिए आप भी अपना सहयोग दीजिए। और अगर कोई भी शिकायत किसी भी तरीके की है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इसको डाउनलोड करिए, भेजिए, एंड विद इन 100 मिनट्स वी विल नो फ्रॉम वेयर यू हैव सेंड दैट मैसेज, और हम वहां पहुंच के उसका निवारण करेंगे और आपको बताएंगे भी कि क्या किया हमने उसको सही पाया, गलत पाया, गलत सही पाया तो क्या किया। सिमिलरली आईटी साइड में और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि वोटर्स को कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल की जा सकती हैं। हेल्पलाइन में आप अपना नंबर देख सकते हैं बूथ का, अपना कार्ड देख सकते हैं, अगर मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं ई एपिक कार्ड। आप परिणाम देख सकते हैं, वेबसाइट पे कोई रिसर्च करनी है हमारी वो देख सकते हैं, अपने बीएलओ से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल थ्रू द वोटर हेल्पलाइन। द सेकंड सेट ऑफ आईटी एप्लीकेशंस इज फॉर द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो जैसे मैंने एक प्रश्न पहले कहा था, हमसे उठाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज का, कि हो सकता है उन्हें सुविधाएं देर से मिले, ना पहले मिले, तो उसके लिए ये व्यवस्था सभी को डायरेक्शन दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इस पोर्टल में जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले परमिशन मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी अगर मैंने ग्राउंड मांगी किसी जगह में रैली करने के लिए, मैंने पहले गाड़ियों की परमिशन मांगी एज ए कैंडिडेट, तो वो किसी भी पार्टी के हो, वो टाइम स्टैम्प्ड है। यानी मैंने 2:15 पर ये आपसे सुविधा मांगी थी इस ग्राउंड को लेने के लिए, किसी ने 2:40 पे मांगी तो मुझे पहले मिलेगी, मेरी एप्लीकेशन पहले है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करती है। वी हैव asked the CEO office to also propagate this particular application, ताकि कहीं से भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब ना हो। और मोर देन 1.12 लाख एप्लीकेशंस केम इन रिसेंटली हेल्ड 5 इलेक्शंस। इतना उपयोग इसका बढ़ा, लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी परमिशन मांगी इसी के थ्रू मांगी। स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर लैंड करना है, उनको ग्राउंड चाहिए, गाड़ी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट का मटेरियल चाहिए, स्पीकर्स चाहिए, लाउड स्पीकर्स चाहिए, सबकी परमिशन इसी पे मांगी। सो दिस इज अनदर थिंग। देन अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज अबाउट द नो योर कैंडिडेट। वोटर को ये राइट है कि वो जिसके पक्ष में डिसाइड कर रहे हैं वोट देने जाने का, उससे पहले उस कैंडिडेट के बारे में उनको पता लगना चाहिए। तो कैंडिडेट के बारे में एक एप्लीकेशन है, नो योर कैंडिडेट KYC। यू कैन सी ऑल द प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट्स, उनकी पिक्चर के साथ में, यानी यहां तक कि उनको क्या उनके एसेट्स हैं, क्या उनकी लायबिलिटीज हैं, क्या उनका एफिडेविट्स है, सब आपको एक जगह में देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल बिकॉज सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। और अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो उसको न्यूज़पेपर्स में, टीवी में 3 बार पब्लिश करना पड़ेगा दैट मेरे ऊपर में ये केसेस है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि वोटर को भी ये राइट है कि वो जान ले पहले। इट्स एन इन्फॉर्म्ड चॉइस दैट द वोटर मेक्स आफ्टर नोइंग द कैंडिडेट। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन, दैट वोटर शुड हैव ए फुल डिस्क्लोजर about the candidates, about the assets, about the liabilities, about the background of the candidate, so that he can make an informed choice. So through you we want to propagate this particular app. This is also being used across the states to know, and you will also feel happy seeing it. Please see it once for yourself to know how impressive it is. Another important thing we have done is we have made an election seizure management system, ESMS हम लोग इसको बोलते हैं। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को मीटिंग करके हमने क्या क्या डायरेक्शंस दिए हैं। वो सबके सब इस पर एनरोल होते हैं, इस सिस्टम पे। हमारे सीईओ साहब ने सबको एनरोल करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। एनरोल करने से क्या होगा ये मैं आगे बताता हूं, बट पॉइंट इज दैट अगर इनकम टैक्स ने कुछ किया, ईडी ने कुछ किया, स्टेट एक्साइज ने कुछ किया, तो सबका सब इस पे रिपोर्ट होना है। वी विल मॉनिटर, सीईओ ऑफिस विल मॉनिटर ऑन ए रियल टाइम बेसिस एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी to prevent and reduce the inducement possibilities wherever it exists. Friends, अगर इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि कहां कहां ये एक्सेस होने वाला है, तो बॉर्डर्स पे अगर हम जाएं तो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा के जो बॉर्डर शेयर करते हैं 4 स्टेट से, और इन पर पुलिस की 118
और जीएसटी की 38, टोटल 156 चेक पोस्ट फंक्शनल बनेंगी और फंक्शनल कर दी जाएंगी सून। क्यों? इनको मैप में भी दिखाया गया है आपको, इनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये कंबाइंड तरीके से काम करेंगी, यानी जीएसटी, एक्साइज, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, सबके लोग मिलके एक जगह में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना के वर्क करेंगे, ताकि कोई किसी का हक है देखना, कोई किसी का हक है देखना, इकट्ठे नहीं होते तो यही होता है कि मैंने तो अपना देखा, आपका छोड़ दिया। तो मतलब हर किसी को एक निकलने का रास्ता बनता है कि ये क्यों नहीं पकड़ा, ये मेरा काम नहीं था। नाउ सिंस एवरीबडी इज टुगेदर, व्हाई आर यू नॉट सीइंग? सो दिस स्टेट्स everyone has been told that CS and DG both have been directly instructed, including all the district magistrates and SPs, to have combined teams to look at it.